to all. Today we are going to see the accounting treatment of existing goodwill and the treatment related to accumulated profit, reserve and losses during change in profit sharing ratio. So let us start. Now, what do you mean by existing goodwill? The goodwill which appears in the balance sheet of the firm on the date of reconstitution is known as existing goodwill. You know that goodwill exists in the book only if it is purchased goodwill. So, whenever you are going to reconstitute your firm and if there is any existing goodwill in your balance sheet, you have to first do accounting treatment for that existing goodwill and then you are going to calculate the compensation of goodwill that you will pay to the sacrificing partner. It means before revaluation of your goodwill, you have to first do the accounting treatment for the existing goodwill. So what can be the treatment? There are two ways in which the existing goodwill can be treated. First, when existing goodwill is written off. So the first case is when you write off the existing goodwill. Write off means you remove it from your balance sheet. So how you will write off? So the entry to write off the existing goodwill is all partners capital or current account debit. It means when the capital is fixed, then all partners current account debit, and when the capital is fluctuating, then all partners capital account will be debit in their old ratio and to goodwill account. Since the goodwill is asset, so when you are writing off the asset from your book, so the asset account will be credited and it will be debited to all partners capital or current account in their old ratio. So this is one method where you will treat existing goodwill. So the second method, when existing goodwill is carried in the books of account, in such case effect is given to the net increase or decrease in the value of goodwill. It means that whenever you are not going to write off the goodwill existing in the book, इट मीन्स कि आप अपने एग्जिस्टिंग गुडविल को नहीं चेंज करना चाह रहे हो, उसको एज इट इज़ बुक में ही रखना चाह रहे हो. तो अब आप जब नया गुडविल कैलकुलेट करोगे टू पे द कंपेंसेशन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू. That is, for example, your existing goodwill is rupees 20,000 and for the payment of compensation to the sacrificing partner, you have valued your goodwill at rupees 1 lakh rupees. Okay, now if you don't want to remove this goodwill, 20,000 goodwill from your book, so whenever you are going to pay the compensation to the sacrificing partner, you are going to take the difference between the two. That is the amount of goodwill calculated for the adjustment of compensation to the sacrificing partner and the existing goodwill in the book. So the difference is 80,000. So whatever compensation you are going to pay to the sacrificing partner will be based on 80,000 and not on 1 lakh rupees. So these are the two treatment for existing goodwill at the time of change in profit sharing ratio among the existing partner. So next topic is related to accounting of reserve, accumulated profit and losses. So what will be the treatment of reserve, accumulated profit and losses? We know that reserve is that amount of profit which is not distributed among the partners. Accumulated profit is also undistributed profit, and accumulated loss is the loss which is not distributed yet.
So what will be the treatment of all these items when there is reconstitution of your partnership firm? यानी जब भी आप रिकन्स्टिट्यूशन करोगे पार्टनरशिप फर्म का, यानी आप पुराना एग्रीमेंट ख़त्म करके नए एग्रीमेंट में जाओगे, तो आप ये जो एक्यूमुलेटेड है इसका मतलब this reserve and loss or profit is related to previous agreement. So what will be the accounting treatment of such reserve and such profit and losses? So before entering into new agreement, you have to make adjustment related to all such items which are related to the previous agreement. So same we will see here. First, let us see what will be the journal entries for transfer of reserve and accumulated profit. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी रिजर्व और प्रॉफिट प्रीवियस एग्रीमेंट का है यानी एक्यूमुलेटेड है आज तक का जो है उसका आप ट्रीटमेंट क्या करोगे. तो फर्स्टली यू नो दैट रिजर्व हैव क्रेडिट बैलेंस. To write off the reserve, you will debit the reserve account. Then profit and loss accounts credit balance, that is profit. Credit balance of profit and loss account denotes profit. Then there are two main types of reserve which you will see in this chapter, that is workman compensation reserve and investment fluctuation reserve. So these are the reserves. It means the profit which is set aside from the profit which is not distributed among the partners. So at the time of reconstitution, you are going to distribute all such reserves and accumulated profit to all the partners in their old ratio. So for distributing this, the entry will be all the reserves and all the profit and loss account will be debited and it will be credited to all partners' capital or current account in their old ratio. So you have to settle all the accounts in their old profit sharing ratio. So this will be the treatment, that is journal entry for transfer of reserve and accumulated profit. Now what will be the entry for transfer of accumulated losses? If there is any loss which is of previous agreement, that is on the date of reconstitution, if there is any accumulated loss in your books of account, then you are going to distribute such loss also among the partners in their profit sharing ratio, that is old profit sharing ratio. So the entry will be as all partners are sharing loss, so their capital or current account will be debited in their old ratio, and to profit and loss debit balance which denote loss, and to deferred revenue expenditure, for example advertisement suspense. So this will be the entry related to distribution of reserve, accumulated profit and losses. So there is one reserve which you have to see, that is workman compensation reserve. यानी जब हमने अभी रिजर्व्स की एंट्री लिखी थी तो हमने देखा था कि आपने सारे रिजर्व्स को डेबिट कर दिया जिसमें से एक रिजर्व था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व? So workman compensation reserve means whenever you keep aside certain amount of profit from your profit, that is certain amount from your profit for paying any compensation to the employee in future which may be payable in future, so such reserve is known as workman compensation reserve. यानी जब भी आप अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज अ रिजर्व रखते हो फॉर एनी क्लेम दैट एन एम्प्लॉय कैन मेक. फॉर एग्जाम्पल अगर काम करते हुए वर्क प्लेस पे किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है मशीन से, तो आप ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के लिए रिजर्व रखते हो. और जब आप किसी वर्कमैन के यानी एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व रखते हो तो ऐसे रिजर्व को कहा जाता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. एंड इफ देयर इज एनी क्लेम, यानी अगर किसी वर्कमैन का कोई भी क्लेम आता है, जैसे उसे चोट लगी और आपको उसको अमाउंट पे करना पड़ा, तो आप वो अमाउंट पे करोगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट से.
Now, what will be the treatment of workmen compensation reserve at the time of reconstitution? Okay, there are two main situations when you have to do accounting treatment of workmen compensation reserve. So first situation will be when claim against workmen compensation reserve does not exist. यानी अब आप आज अगर अपने फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन कर रहे हो और आपके बैलेंस शीट में रिजर्व में शो हो रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ₹1,00,000, तो अब ये रिजर्व आपने तैयार किया था टू पे द कंपेंसेशन टू द वर्कमैन इन एनी unforeseen, we say any accident or anything which happens during the work period. So if there is no claim for workman compensation, then what you will do with this reserve? अब अगर कोई क्लेम ही नहीं है और आप अगर आज फॉर्म को रिकन्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो आपको पता है कि आज तक का सारा जो भी रिजर्व या प्रॉफिट है वो आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और उसी के बाद आप आगे जा सकते हो। यस, यानी आप नया एग्रीमेंट शुरू कर सकते हो। तो अब अगर कोई क्लेम है ही नहीं तो ये रिजर्व किसी काम का नहीं है। सो यू विल डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट विच इज प्रेजेंट इन द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट टू पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। सो जितना भी पैसा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट में होगा वो आप डेबिट करोगे और उसे क्रेडिट करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी ये पुराना रिजर्व है तो पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दिस इज द फर्स्ट केस। देन सेकेंड केस हैज 3 अल्टरनेटिव। यानी सेकेंड केस आपसे कह रहा है व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन एग्जिस्ट, यानी कुछ क्लेम है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपने जिस पर्पस के लिए रखा था वर्कमैन के क्लेम के लिए, तो कुछ क्लेम अगर है तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट। अब क्लेम की 3 कंडीशन हो सकती है। पहली, व्हेन वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यानी जितना आपने रिजर्व तैयार किया है उतने ही अमाउंट का वर्कमैन का क्लेम आया है। ठीक है, तो इस टाइम पे आप एंट्री क्या करोगे? तो इन एनी केस आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो आपने तैयार किया है उसको डेबिट करना है, क्योंकि रिजर्व अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्रेडिट करते हो और जब आप हटाना चाहते हो तो उसको कम करना चाहते हो तो आप डेबिट करोगे। सो इन एनी केस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड इफ देर इज इक्वल अमाउंट ऑफ क्लेम, फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तैयार किया था और आपको जो वर्कमैन से क्लेम मांगा गया है वो भी 50,000 का है, तो आपको ये सारा पैसा वर्कमैन क्लेम में देना होगा। यानी अब आपको पार्टनर्स को बांटने के लिए कुछ नहीं बचेगा फ्रॉम दिस रिजर्व। यानी ये रिजर्व जिस पर्पस से रखा गया था उस पर्पस के लिए पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री आपकी होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। देन दिस वाज द फर्स्ट केस। देन सेकेंड case under situation number 2, when workman compensation claim is less than the amount of workman compensation reserve, यानी जब आपका जो क्लेम आया है, यानी वर्कमैन जितना एम्प्लॉय जितना डिमांड कर रहे हैं वो क्लेम आपके रिजर्व से कम है। यानी एग्जाम्पल फिर से हम देख रहे हैं कि अगर आपने 50,000 का रिजर्व कर रखा था, यानी जब भी किसी एम्प्लॉय से कोई भी क्लेम आएगा तो हमने उसके लिए अपने प्रॉफिट में से 50,000 रुपये बचा के रखे थे। अब आपके पास क्लेम आया है सपोज 40,000 का, इट मीन्स द क्लेम इज लेस देन द अमाउंट विच यू हैव रिजर्व्ड। सो व्हाट विल बी द एंट्री? तो आप इस 50,000 को पहले तो डेबिट कर दोगे, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, जिसमें से 40,000 आप क्लेम के लिए पे कर दोगे, यानी टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 40,000 एंड रिमेनिंग 10,000 डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो रिमेनिंग 10,000 का क्या करें? तो बचा हुआ 10,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकॉज इट इज ओल्ड रिजर्व।
So the entry will be workman compensation reserve account debit, fill the whole amount, full amount of reserve, then to workman compensation claim, the amount of claim, and the remaining reserve will be distributed among the partners in their old profit sharing ratio. So this is the second case. Now the third case for distribution of reserve, workman compensation reserve, when workman compensation claim is more than the amount of workman compensation reserve. यानी अब अगर आपने रिजर्व रखा था 50,000 का और क्लेम आ रहा है 60,000 का, यस, यानी आपने अभी तक पैसा बचाया था फॉर अलग से रखा था फॉर एनी क्लेम वॉज 50,000, जबकि क्लेम आपका ज़्यादा है, तो अब आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको जो रिजर्व है उसे डेबिट करना ही होगा। जितना भी आपका रिजर्व था उसको आपने डेबिट कर दिया, तो 50,000 से आपने डेबिट कर दिया, जबकि आपको टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम देना है 60,000, यानी क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट में 50,000, तो अब डेबिट में आपको 10,000 करना होगा। बट ये किस अकाउंट में डालोगे? तो जब भी हम रिकन्स्टिट्यूशन करते हैं तो जितना भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से करते हैं, तो ये जो 10,000 का लॉस या प्रॉफिट है वो भी जाएगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री विल बी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। एंड इसके बाद ये जितना भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में अमाउंट है, ये लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये जो 10,000 का हमें लॉस हो रहा है ये एज पर ओल्ड एग्रीमेंट हो रहा है, यानी ओल्ड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम पे करना था। तो ये 10,000 का जो रिवैल्यूएशन का लॉस है इट विल बी फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. So let us see this with the help of an example. A, B and C sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Decided to share the future profit and losses in the ratio of 2:3:4. With effect from 1st April 2020, an extract of the balance sheet as on 31st March 2020 is given. Workman compensation reserve is given on the liability side 90,000. And there are various alternative cases when you have to pass the journal entry for workman compensation reserve. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2, 3 पार्टनर का रेशियो आपको दे रखा है ओल्ड, न्यू रेशियो बता रखा है, न्यू रेशियो है 2:3:4, और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है, यानी बैलेंस शीट में से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपने कर रखा है 90,000 का, यानी आपकी लायबिलिटी साइड में रिजर्व है 90,000। तो अगर ये सारे केसेस होंगे तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? तो पहला केस है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, यानी क्लेम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ आपको पता है कि रिजर्व आपके पास है 90,000. सो व्हेन एवर देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लेम देन यू आर गोइंग टू ट्रांसफर ऑल द अमाउंट ऑफ रिजर्व, टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो क्योंकि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, अब उसको आप राइट ऑफ करोगे, सो इट विल बी डेबिटेड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द 3 पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 4:3:2. सो A will get 40,000, B will get 30,000 and C will get 20,000. सो सेकेंड केस व्हेन देयर इज नो क्लेम, जब कोई क्लेम नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर कोई क्लेम नहीं है तो सारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इट मीन्स द एंट्री इन बोथ द केस नंबर 1 दैट इज नो इन्फॉर्मेशन एंड केस नंबर 2 व्हेन देयर इज नो क्लेम, तो दोनों में एंट्री सेम होगी, सारा रिजर्व आप सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर ओल्ड रेशियो. तो एंट्री विल बी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट ऑफ 90,000 टू A's कैपिटल अकाउंट 40,000, टू B's कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड टू C's कैपिटल अकाउंट 20,000. सो
नेक्स्ट केस, थर्ड केस है हमारा, व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज ₹45,000। यानी ये कौन सा केस है, जहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। यस, सॉरी, workman compensation reserve is greater, not claim is greater, workman compensation reserve is greater than workman compensation claim, यानी आपका रिजर्व क्लेम से ज़्यादा है। ठीक है, तो हर एक केस में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट आपको करना है 90,000। अब इस 90,000 में से आपको वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम पे करना है 45,000, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, जिसमें से 45,000 क्लेम में चला गया टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, एंड रिमेनिंग अमाउंट, the remaining amount is 45,000, and that 45,000 will be distributed among the partners in their old profit sharing ratio, that is 4:3:2. So A will get 20,000, to B's capital account 15,000, and to C's capital account 10,000. Now case number 4. Now case number 4 says when a claim on account of workman compensation is 99,000. Now see, यहाँ पे जो क्लेम है वो आपके रिजर्व से ज़्यादा है, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, यानी क्लेम आपका रिजर्व से ज़्यादा है। तो फर्स्ट आप से सिंपली एंट्री पास कर दो, जैसे आप कर रहे हो सारे केसेस में क्लेम रिजर्व जो होगा वो डेबिट होगा 90,000, एंड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 99, बट डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, और यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है 99,000। सो ये जो डिफरेंस है वो कौन से अकाउंट से दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो डिफरेंस इज 9,000, सो इट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपने रिजर्व का 90,000 में से का क्लेम दे दिया, बचा हुआ 9,000 रिवैल्यूएशन में डाल दिया, और अब ये जो 9,000 का लॉस हुआ है दिस विल बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर पार्टनर्स को लॉस हमें देना है तो द एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी अब आपने ये रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया और सारे पार्टनर्स को इस लॉस को बोर करना पड़ा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। And now that see the last case, that is when the claim on account of workman compensation is ₹90,000. It means when workman compensation reserve is equal to workman compensation claim, यानी दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं बचेगा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, एंड द एंट्री विल बी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 to workman compensation claim account 90,000. It means we don't have any reserve which is to be distributed among the partners. So these were the entries related to various alternative cases of workman compensation claim.